Hello? Hi. Hello? Actually, I'm waiting for more participants to come. So just please wait for a while. Okay. Hi, Lenny. Hello, how are you? I'm good. How are you? I'm fine. Okay. Actually, I'm waiting for more participants to come. So please wait for a while. Okay, well, thank you for having me. Okay. So, Charlie, do you want to start? Do you want to perform? Start now? Yeah. Oh, hey, hi, Larry. Hello. Where are you based now, Larry? Hello. I'm from United States, Lancaster, Pennsylvania. Oh, okay. Well, I'm in Dundee, Scotland right now. And where are you in? What is your name? Realm? Realmy? How do I say it? Avnindra. What's your name, guy in the t-shirt? Avanindra from India. Anant. His pen name is Anant. Okay. Where are you based? He's from India. Yeah. What part of India? Delhi. Way to go. Yeah, so I am British. I have to say that on these international mics because people look at me and they don't know where I'm from. I think it's all right in like an Indian mic, but when I do shows in America, like people just keep telling me to fuck off to Mexico. Like I don't know what I look like. I'm kind of ambiguous racially. I've also been told I look like Saddam Hussein's disappointing nephew, which is a sick burn, I think. I'm currently wearing like what I usually wear on stage. I've got like a jacket, a smart jacket, and a t-shirt. But because of lockdown, I've put on quite a bit of weight. I'm actually having to hold my breath in right now. Let's just say this t-shirt, if I was to breathe out, like all these lines would go straight. It wouldn't be good. Not good. Lockdown has affected me in many ways. One way is it's given me an excuse to be single now. Like I was single before coronavirus, and now in my country, it's actually illegal to date. Like it's actually illegal to have sex with someone who's not in your household, which makes no practical changes to me. But it's nice to have an excuse, you know? My situation with dating has never been good. Like I remember at my workplace, there was a rumor that I'd had sex with one of my colleagues, and someone asked me if it was true, and I said it's not true, but could you tell me some more details? Like, how did it happen? How did it work out for me? What happened in this rumor? I must know. We got someone else joining now. Who's this? Ashok Kumar. Yes, Ashok. Ashok, am I saying that right? Can you hear me, Ashok? No, you can't. Oh, well, you can just get some solace from your name there, knowing that maybe someone somewhere else is listening and this audience is going to maybe creep up into the late single figures. But yeah, the dating situation, I did try and get on it before lockdown. I tried to get on one of those dating apps, but I tried Tinder, and I didn't really. I think there was a glitch because no one was choosing me. So I tried some of the other ones, and I finally found one that actually works for me. You might have heard of it. It's called Uber. It's I tell you what, though, you can't be picky on Uber. If you're dating on Uber, Jesus Christ. But I have to say, they come to you and they bring their own car, which is great because I don't even have a driving license, let alone drive my own car. Ashok, you pop it in and out of existence there, mate. Well, are you there? Hello, Ashok, can you speak? Hi, Ashok. आप बोल सकते हो कुछ? Please, video on कर लो आप. Okay. Hi. All right, I'm not going to wait for Ashok. Ashok, you can be mysterious and silent and veiled in mystery all you like. He said he can't hear us, so I guess you got to tell him to go and unmute himself. Oh, he can't hear me. Okay. Right, sign language.
remember. Anyway, I'll end with this one. I've been noticing that a lot of cosmetics companies are trying to market their products at men, and they're not used to having to do this, so they're kind of crude about it. Like I saw a moisturizer company try to target moisturizer at men, and they made the advert like this ridiculous James Bond thing. They had Jason Statham. He was on a motorbike. He jumped the motorbike over a fireball, turned to look at the camera and said, use moisturizer from Clinique. And it's like, what the fuck does that have to do with anything? But I'm looking forward to how far this goes, because, you know, it's 2020. We're not allowed to assume gender anymore. Soon they're going to have to market every single product at men. I'm looking forward to the first tampon advert aimed at men. Right? If you can picture the scene, you've got Jason Statham. Again, he's on a motorbike. He jumps the motorbike on the back of a Ferrari. Then he jumps the Ferrari on the back of a speeding train. He sees some passing terrorists. He takes his tampon out and he pulls the string out with his teeth like the pin of a grenade. Throws the tampon at the terrorist. It explodes and the terrorists are killed to pieces. And he puts his sunglasses on and says, sorry, I guess it was my time of the month. And then they cut to the voiceover. The voiceover says, Tampax for men introducing the new tactical tampon because some men need to bleed too. All right. Thank you very much, all three of you. I'm finished now. Thank you for sitting through that. Thank you so much, Charlie. Yeah, thank you, Ali. Okay, Larry, do you want to speak? Okay, I got some poetry. Great. I have poetry. Well done, Charlie. The first poem that I have 3 poems. So the first poem I have is called In Search Of. In search of love, I'll go out on a limb. In search of friendship, I'll search until time ends. Where there is love, that's where I'll be, wrapped within its mystic clouds of happiness, so protectively. True love and friendship derive from deep within oneself. So once found, gladly share them with someone else. For all things are given freely from the Heavenly Father above. Remember this as you go along your journeys for whatever you are in search of. In search of. The next one I have is called Rush of Love. Yeah, let me find it so I don't have to mess it up. Rush of Love. Just when I was about to give up on love, it came into my life quickly, striking like a snake, but as gentle as a dove. It opened up in me passions that I never felt before, leaving me totally confused, but yet yearning for more and more. Why did love for me take so long? This I guess I'll never know. But now that it's here, finally, I'll never let it go. Forever I'll cherish it, hoping of it to never ever give it up, always savoring the sweetness from this sudden rush of love, rush of love. Oh, nice. The third one is called Light. Stand tall in your light for all to see, and like a beacon in the darkness, you are meant to be. Giving strength to those when giving up is what they believe, and providing hope so they too can move triumphantly toward their dreams. Within you lies the ability to achieve, and your light is the beauty that all will truly see. Let your light shine. Thank you. Wow.
Well done, Larry. Your poem is very beautiful and Yes, you are expressive. extremely nice. Thank you. Very beautiful. Thank you so Thanks much. for. Thank you. I'll be back. Thank you very much for having me, all. But I'm gonna Thank leave you now. so But, much, Charlie, for coming I hope you here. have a good And show. Thanks thank you very so much. much, Charlie, for coming Bye. here. And Brother. okay, thank you so much, Larry. Thank you so much. Yes. Thank you for the platform. Like as you said, art has poets and artists. We have a unique right now during this uncertainty times that we're living in. That's when your light, because it's dark. So we have a light within us, whether it's a gift or talent, and you're bringing. Even though you're in India, almost 12 hours away, because here it's 6:30, going on 6:45 in the morning here. But like I said, you provided a platform where I truly love performing and reading poetry, because we have a chance to reflect on world things, and we have humanity reflect on the actions that they're presenting out there in the world, and to maybe step back and take a look at themselves, a good deep look, and say, is this the direction we want to really go into? So we as artists, we do have an opportunity to affect what's going on around us. Yes. I'm so grateful that you liked our platform and you performed here. Yes, yes. And you. Yes, I'm honored. So I thank you. I'm honored. So I mean, as long as you continue to provide a platform, I'll support it. So I don't care how far you are. Eventually I'll be in India reading poetry too. But that's down the line. But right now, I would consider you my Indian friends from afar. So I would have to say a shout out, nice to meet you, and and may God bless this for this format, so other artists could may it grow into what you and the brother see it grow. I can see it growing bigger than what it is now, so that'll work. Thank you. No, Thank you very much. Thank you so much. Okay. Your poem is very beautiful. Excuse me. I don't understand what y'all saying because I'm English, but I'm sure at the end you can tell me in the English version what is being said. That would be nice, because I don't want to be lost. Like, what the, I'm always down to learn new languages, so you can teach me a couple words what actually say, and maybe I can follow him in his native tongue. Okay, Larry, next time we are organized to only English. We organize this event every Sunday, so I hope you will come next Sunday also. Yes, I will. Okay, Himanshu, do you want to perform? Yes, I would like to perform. Okay. Just wait 1 minute. And video पे on कर लो. हाँ जी बस मैं थोड़ा वही कर. Am I visible and audible? Yes, you are visible and audible. Welcome. Okay. कौन सी करूं? तो शुरू करते हैं. तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु रावत और मैं सुंदर शहर चंडीगढ़ का रहने वाला हूं. और आज मेरी कविता का शीर्षक है मुझे मेरी गरीबी पसंद है. चलिए शुरू करते हैं. होगी अमीरी अच्छी, मुझे मेरी गरीबी पसंद है.
मुझे पसंद है उस बस में सफर करना जिसमें खुली खिड़कियों से हवा आती है, लेकिन वो गाड़ियां नहीं पसंद मुझे जिसके दरवाजे बंद हैं। होगी अमीरी अच्छी, मुझे मेरी गरीबी पसंद है। लाख रुपए महीने का कमा लिया तो क्या, 20,000 रुपए कमा के मुझे 3 वक्त की रोटी और रात को नींद आ जाती है, ये कौन सा कम है। होगी अमीरी अच्छी, मुझे मेरी गरीबी पसंद है। इतना बड़ा बंगला नहीं है कि हर सदस्य अपने अलग कमरे में बैठा हो। इतना बड़ा बंगला नहीं है कि हर सदस्य अपने अलग कमरे में बैठा हो। 2 कमरों वाला एक छोटा सा मकान है मेरा, जहाँ मेरा परिवार मेरे संग है। होगी अमीरी अच्छी, मुझे मेरी गरीबी पसंद है। होगी अमीरी अच्छी, मुझे मेरी गरीबी पसंद है। धन्यवाद। वाओ, Okay, बहुत ही I अच्छा would था। clap for that. बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा प्रयास था। Okay, Mayur, do you want to perform? Yes, Mayur. Mayur, मयूर तक आवाज नहीं जा रही है तब तक। I think वो connect कर रहे हैं audio. हेलो Yes, Mayur. हेलो अशोक कौन बोल बोल रहा रहा है? हूँ। हेलो। अशोक। Yes, अशोक। अच्छा मैं परफॉर्म करूं? हाँ, हाँ, जस्ट स्टार्ट करिए। एक सेकंड ना, मैं पहले देख लेता हूँ। ये कुछ ख्याल ऐसा है कि एक रोज लिखा था ऐसे ही। तो आप वीडियो ओपन नहीं एक रोज करोगे? लिखा हाँ, नहीं, ऑन नहीं है। कि ये कुछ ऐसा था कि एक रोज लिखा था ऐसे ही, कि एक रोज लिखा था ऐसे ही ये मौत ना जाने कब आएगी। कि एक रोज लिखा था ऐसे ही ये मौत ना जाने कब आएगी। बैठ किनारे सोच रहा पगला, कि बैठ किनारे सोच रहा पगला लहरें जिंदगी की अब आएगी। कि बैठ किनारे सोच रहा पगला लहरें जिंदगी की अब आएगी। कि क्यों कोस रहा किस्मत को प्यारे, कि क्यों कोस रहा किस्मत को प्यारे मेहनत कर शोहरत तब आएगी। और एक आशिक बैठा इंतजार में, एक आशिक बैठा इंतजार में आना होगा उसको जब आएगी। और कि छोड़ बैठा, कि छोड़ बैठा नशे को वशो कब, कि छोड़ बैठा नशे को वशो कब लत लगेगी फिर से जब तलब आएगी। ये एक ख्याल है। और एक दूसरा एक और ख्याल सुनना कि जनाजे निकल रहे हैं मोहब्बत के। जनाजे का मतलब होता है अर्थी। हाँ, जनाजे का मतलब होता है अर्थी। कि जनाजे निकल रहे हैं मोहब्बत के, इस महामारी का नाम सोचा क्या। जनाजे निकल रहे हैं मोहब्बत के, इस महामारी का नाम सोचा क्या। कि सर झुकाने से मन्नतें पूरी होती है, कि सर झुकाने से मन्नतें पूरी होती है। जानना कौन से है धाम सोचा क्या। और कि थक गया है बदन अब बैठे बैठे, थक गया है बदन अब बैठे बैठे करना क्या है काम सोचा क्या। कि बेवजह बिक रहा यूं बाजार में, कि बेवजह बिक रहा यूं बाजार में रखना क्या है दाम सोचा क्या। कि इश्क से वाकिफ नहीं हुआ अब तक। वाकिफ का मतलब होता है फेस टू फेस। कि इश्क से वाकिफ नहीं हुआ अब तक कितना है ये हराम सोचा क्या, कि कितना है ये हराम सोचा क्या। और कि ये जो फैल रहा है ना कोरोना वगैरह, तो ये आखिरी शेर उसके लिए है कि खत्म होने वाला है सब कुछ अशोक, कि खत्म होने वाला है सब कुछ अशोक देना क्या है पैगाम सोचा क्या। और ये एक ही ख्याल था। और एक ये कल ही लिखा हुआ ख्याल है, मतलब अगर आप लोग को समझे तो फिर काफी अच्छा रहेगा। ये ख्याल कुछ ऐसा है अ, कि पहले जैसी बात नहीं, कि अब वो पहले जैसी बात नहीं जिंदा हूं पर हयात नहीं। हयात का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, मतलब मैं हूं नहीं हूं वैसा। कि अब वो पहले जैसी बात नहीं जिंदा हूं पर हयात नहीं। अब वो पहले जैसी बात नहीं जिंदा हूं पर हयात नहीं। मैं सब्र की सीमाएं तोड़ दूं, कि मैं सब्र की सीमाएं तोड़ दूं बेसब्री की कोई सिरात नहीं। सिरात, सिरात का मतलब होता है कि रास्ता। कि अब वो पहले जैसी बात नहीं मैं जिंदा हूं पर हयात नहीं। मैं सब्र की सीमाएं तोड़ दूं बेसब्री की कोई सिरात नहीं। और कि किसी और की चाहत में रह लूं,
कि किसी और की चाहत में रह लूं ऐसी तो कोई मेरी जात नहीं, कि किसी और की चाहत में रह लूं ऐसी तो कोई मेरी जात नहीं, कि सो जाऊं बिन ख्याल के तेरे, कि सो जाऊं बिन ख्याल के तेरे, कटी हो ऐसी एक रात नहीं। एक से मेरा एक दोस्त है, वो शायद तक लाइन पे है। बहुत अच्छा पूर्व, बोला अशोक भाई, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा Well done. बोला है। पूर्व भी परफॉर्म करना चाहते हैं कि पूर्व पूर्व परफॉर्म करेगा हम लोग। नहीं 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 नहीं, मैं जब सुनने आया था। नहीं, वो सिर्फ सुनना अगर है। आप हम लोग परफॉर्म करना चाहते तो आप परफॉर्म कर सकते हो पूर्व। नहीं नहीं हम नहीं लोग नहीं, मैं रेडी नहीं। एक दूसरे को सुन के सीखते हैं। मैं देखने आया था। नहीं, हम लोग एक्चुअली परफॉर्म करना बंद कर दिया। हम लोग पहले करते थे परफॉर्म, तो इसके लिए एक अगर आप लोग अगर मतलब समझ पाए तो फिर एक ना हमारा एक दोस्त सुनाओ है, जैसे सुनाओ। पूर्व है, ऐसा हमारा एक और फ्रेंड है मितेश करके, वो ना चेन स्मोकर है सिगरेट का। तो इसके लिए मैं इसके लिए पूछा था could you translate what he's saying? Because like चेन स्मोकर, इसको समझा दो। He is telling us that he has a friend who is a chain smoker. okay. I have written something for him. So yeah, so he has written something for him. He is going to okay. dedicate the poem for him. सुनाओ तो सुनाओ। ये कुछ मतलब ये पोयम एक कविता है। मतलब ये कोई नियम कानून से नहीं लिखी गई, बहुत फ्री लिखी गई है। बस एक उड़ता ख्याल है। ख्याल ऐसा है कि मैं सिगरेट को राख बनाता हूँ, कि मैं सिगरेट को राख बनाता हूँ, एक दिन खुद भी राख बन जाऊंगा। मैं सिगरेट को राख बनाता हूँ, एक दिन खुद भी राख बन जाऊंगा। आग लगेगी मेरे तन पे भी, कश दो कश मैं भी पूरा जल जाऊंगा। अरे यार, एक वादा ना सही एक विश्वास खुद को दिलाऊंगा, मैं अगले जन्म का कोटा इसी जन्म में पूरा कर जाऊंगा। कि मैं अगले जन्म का कोटा इसी जन्म में पूरा कर जाऊंगा। फिर से शेर पढ़िएगा ना। कि ये शेर कुछ ऐसा है कि मैं सिगरेट को राख बनाता हूँ, एक दिन खुद भी राख बन जाऊंगा। आग लगेगी फिर से, कश दो कश मैं भी पूरा जल जाऊंगा। एक वादा ना सही एक विश्वास खुद को दिलाऊंगा, मैं अगले जन्म का कोटा इसी जन्म में पूरा कर जाऊंगा। क्या है कि मुझको मतलब दोस्त होता है ना, दोस्त बड़ा हरामी होता है। जैसे मेरा ये दोस्त है, बड़ा हरामी। अब इसमें कैसा होता है ना दोस्त का, कि दोस्त को अपन बोले कि भैया 15 वाली सिगरेट लेके आना, तो वो 5 रुपए की सिगरेट लेके आता है। तो 15 की सिगरेट एडवांस की आती है और 5 रुपए, क्योंकि मुझको अपना दोस्त कहते हो, मुझको अपना दोस्त कहते हो, तो एक बात मेरी तुम मान लेना, कि लिटा रहूं जब उस अग्नि में तो एक डब्बा मुझको सिगरेट का देते जाना। कि हर बार की तरह एडवांस कह के मुझको फेमस ना पिलाना। क्यों? क्योंकि अब के जो मैं रूठ गया तो तुमको बड़ा सताऊंगा, कि बनना आत्मा बेटा तुमको बड़ा बुलाऊंगा। कि मुझको खुद के आसपास महसूस करके तुम मायूस ना हो जाना, कि जब भी याद आए मेरी 2 कश सिगरेट के लगाना। कि तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमको भले बाती जानता हूँ, कुछ दिन अकेले में कुछ दिन गैरों के साथ कश लगाओगे, फिर लौट के बेटा वहीं मेरे पास आओगे। कि जब तुम आओगे तो उस यमराज को भी छल्ले निकालना सिखाएंगे, कि वो जो ना कर पाया तो उसको भी कान के नीचे 2 लगाएंगे। कि खा कसम की अब के इस सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसे तो काफी बहुत कुछ अच्छा, लिखा हुआ, ऐसे मतलब काफी कुछ लिखा हुआ। मतलब अब ना एक मैंने सुशांत सिंह राजपूत की जब मतलब उसने सुसाइड किया, तो उनके लिए तो कुछ उस वक्त लिखा है मैंने एक लिखा था। हाँ, मतलब वो एक डिप्रेशन के ऊपर था। वो पूरा ख्याल एक डिप्रेशन के ऊपर है। वो ख्याल कुछ ऐसा है कि ये थोड़ा अच्छे से सुनना। इसका पहला शेर कुछ ऐसा है कि गुजरी आप बीती सबको बतानी है, कि गुजरी आप बीती सबको बतानी है, कोई मानता नहीं बातें मनवानी है। कि कब कहाँ किसको, कि कब कहाँ किसको क्या कहना, बात खुद को ये समझानी है। अब कहीं मैं रहूं या ना ही रहूं, तो अब कहीं मैं रहूं या ना ही रहूं, याद कौन सी तुझको सतानी है। और ये शेर सुनना कि आप किस धोखे में जी रहे हो, कि आप किस धोखे में जी रहे हो, आपको थोड़ी ना याद आनी है। कि आप किस धोखे में जी रहे हो, आपको थोड़ी ना याद आनी है। और ये शेर वो सारे जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए, कि जो कह रहे हैं सब कायर मुझको। ये शेर समझना काफी मुश्किल शेर है कि जो कह रहे हैं कायर मुझको, कि जो कह रहे हैं कायर मुझको, हिम्मत मौत के लिए अब जुटानी है।
कि जो कह रहे हैं कायर मुझको हिम्मत मौत के लिए अब जुटानी है, कि छोड़ दे अशोक सब कुछ अब, कि छोड़ दे अशोक सब कुछ अब, तुझको कौन सा दुनिया बसानी है। बहुत बहुत वाह, धन्यवाद, इतना काफी। बहुत ही अच्छा था। वो सुधार दो वाला सुना दो। बहुत जबरदस्त है। अरे अशोक भाई, अभी और भी टाइम देना अरे लोगों अशोक को। भाई वो सुधार पहले दो ही वाला मैं जो था ना वो मयूर को वो वाले परफॉर्म रदीफ करवा का था देती हूँ। वो। इनके पास टाइम नहीं है, टाइम का थोड़ा इशू है, ये बाकी सब लोग संभाल ले उसके बाद। और भी देखो लोग टाइम हो तो एक और एक ख्याल। मयूर प्लीज स्पीक समथिंग, आर यू देयर? यस, हेलो मैम, हेलो सर, हाय। कैसे हो बहुत सर? दिन बाद। ऑडियो भी ज्वाइन नहीं हो रहा था। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, स्वागत है आपका। अरे बढ़िया, अशोक कुमार जी का शायरी सुन के तो एकदम हिम्मत आ गया अभी। लहरी सर वगैरह नए आए हैं, आउट ऑफ के सर लहरी सर। वो हिंदी नहीं समझते हैं तो क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, चलेगा, अपन यूट्यूब पे डालेंगे तो उनके लिए ट्रांसलेट करके दे देंगे नीचे, कोई इशू नहीं। ओके। एक्चुअली पहले जो देखे थे मैंने, पहले शायरीज वगैरह, इतना दर्द मुझे महसूस हुआ। मैंने मेरे बंदी के साथ ब्रेकअप कर दिया। मेरे बंदी को मैंने रात को 10-1 बजे अपना वीडियो देखा, उसको मैंने मैसेज कर दिया कि आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। तो उसका रिप्लाई ऐसा आया कि अपना ऑलरेडी 3 साल पहले ब्रेकअप हो चुका है। तो मुझे दर्द किधर महसूस को मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और लास्ट टाइम आपने लास्ट या उसके पहले प्रतीक भाई ने अपने, प्रतीक पाटिल करके, उसने एक स्टोरी बताया था कि वो ट्यूशन के जाता था, एक बंदी को देखता था, उसको बंदी बहुत पसंद आती थी। एग्जैक्टली मेरे साथ में वैसे एक हुआ। मैं जाता था कॉलेज, बस स्टॉप पे मेरे साथ उल्टा होता था। एक बंदी मेरे को देख रही थी, बाद में वो कंटिन्यू देख रही थी। मैं घर पे गया, कॉलेज के वॉशरूम में गया, मैंने मिरर में देखा, मेरा ऑटोमेटिक, मेरा कॉमन मैन से मेरा शाहरुख या शाहिद जैसा लुक हो गया कि ऐसा मेरे को लग रहा था वो बंदी। बाद में एक बार मैंने हिम्मत किया, उससे बात किया कि हेलो हाय कैसे हो। तो वो बंदी निकली, नेटवर्क मार्केटिंग वाली बंदी निकली। वो मुझे बोली तुम्हारे पास कार नहीं है? नहीं, मैं बोला मेरे पास कार नहीं। मेरे पास कार अगर रहती तो मैं बस से कॉलेज में जाता क्या? अरे अरे मतलब वो तुम्हारे पास जेट नहीं, उसने डायरेक्ट बोल दिया तुम्हारे पास जेट भी नहीं है। मेरे पास अगर जेट रहता तो मैं कॉलेज क्यों जाता, मैं खुद कॉलेज खरीद लेता। मार्केटिंग वाली बंदी। फिर हम गए होटल में, होटल में हमने खाना वगैरह ऑर्डर किया। और ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले कैसे थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज दिखाते हैं सामने वाले को। हम होटल में गए, होटल में खाना वगैरह ऑर्डर किया, और वो खाने में एक छोटा सा पत्थर आया। सो उसकी रिएक्शन, ओ माय गॉड प्लीज चेंज दैट, ओ वेटर कम दिस, एंड उसने उतना तमाशा कर दिया वहां पे, प्लीज चेंज, मुझे इससे आदत नहीं, ऐसा वैसा। अरे ये बंदी भंडारा जब लगता है, सबसे लाइन में सबसे 1 नंबर पे यही बंदी रहती है, और होटल में मेरे साथ में। ये वही बंदी है जो पानी पूरी वाले के यहाँ पे 3-3 सूखी पूरी लेती है, एक्स्ट्रा सूखी पूरी लेती है, पानी पूरी वाले को कन्विंस करके भैया भैया करके, और भैया इधर उधर खुजा के गंदे गंदे एकदम खतरनाक पानी पूरी उसको खिलाती है, और उसको अप्रिशिएट करती है, भैया ये वाला टेस्ट तो बहुत खट्टा मीठा, बहुत बढ़िया बनाया आपने। भैया को पूछती है आप टेस्ट कहाँ से ले आया? चलो सर जी, आज के लिए इतना, बाकी का थोड़ी देर के बाद ज्वाइन कर दो, बाकी को मौका देते हैं अपन। बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू ओके सर। MI83 कौन है? कैन यू प्लीज रीनेम और कैन यू स्पीक समथिंग? हेलो, MI83 से कौन है? मैम मैं हूँ देवकी नंदन गोचर।
ओके ओके, आप वीडियो ऑन कर सकते हो क्या? ट्राई करता हूँ मैं, मेरे को। ओके। हाय, हाय बेटा। आप आपके साइड से म्यूजिक की आवाज बहुत आ रही है शायद। जी हाँ, ये टीवी ऑन है। मैं एक्चुअली में कहीं पता, तो यहाँ पे कंपनी के लिए मैंने वीडियो ऑन नहीं कर रखा। ओके ओके ओके, मैं म्यूट कर देता हूँ अपना। तो आप परफॉर्म नहीं करोगे? जी, आप परफॉर्म नहीं करोगे, परफॉर्मेंस? मैं अभी क्या है, थोड़ा कहीं बात हुआ था, नहीं तो मैं परफॉर्म करता बिल्कुल। ओके, मैं बाकी लोगों को सुनूंगा आज। जी जी। तो फिर परफॉर्मेंस तो खत्म हो गई है क्योंकि ऑलरेडी सारे सबने परफॉर्मेंस कर दिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैडम, नेक्स्ट टाइम। प्लीज स्पीक समथिंग। अनंत, अवनेंद्र, आवाज नहीं आ रही क्या? तो फिर किसी और पे परफॉर्म कर लें और या फिर हम ओवर करें? और क्या, अभी इधर भी बहुत लोग। ओके, तो मैक्सिमम लोगों ने परफॉर्मेंस दे दी है, सो हम लोग ओपन माइक ओवर कर रहे हैं। अगर किसी को परफॉर्मेंस देना है तो आप बता सकते हो। ओके, मैं लास्ट ये बताना चाहती हूँ कि ऑलगैन के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। ऑलगैन जो है वो ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है। आप प्लीज विजिट करिए, उसमें जाकर देखिए कि क्या आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उसमें। बहुत सारे पोस्ट डले हुए हैं, ऑथर बहुत सारे ऑथर्स ने उसमें पोस्ट डाले हुए हैं। सो प्लीज एक बार विजिट करें और मैं उम्मीद करूंगी कि हम लोगों ने आपको एंटरटेन किया है और आप नेक्स्ट संडे भी परफॉर्मेंस दोगे और ज्वाइन करोगे और अपना परफॉर्मेंस दोगे और लोगों का भी परफॉर्मेंस देखोगे। सो सब लोग टाइम से रहोगे, ये बता दो। हाँ, प्लीज कम ऑन टाइम। आप लोग को टाइम पे नहीं आता है, कोई कोई 10 मिनट लेट आता है, कोई हाफ एन आवर लेट आ रहा है। सो प्लीज बी ऑन टाइम। ओके, सो मैं ओवर कर रही हूँ। सबको थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।